हेलो टू अनदर कम्युनिटी राउंड अप। मैं हूं शाजिया मलिक और आज हम हैं 770 ने जो ईद मिलन पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी उसके ऊपर। न सिर्फ हमारे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स यहाँ पे मौजूद थे बल्कि बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट भी यहाँ पे थे। तो आइए आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। आवाज लव यू। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे 770 AM और आवाज़ TV की जानब से आरफा मुज़फ़्फ़र साहिबा ने और माजिद जमाल साहब के साथ जो मेरा ताल्लुक़ है वो मैं बता नहीं सकता। बहरहाल हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। रशीद भाई हैं, मदर शफीक साहब, ये हमारे पुराने दोस्त सारे, ये हमारे सरदार भाई, सत श्री अकाल सर। ये ना हो तो 770 ना हो, क्योंकि सुबह ये सुबह जो प्रोग्राम शुरू होता है, जी हाँ, और ये आरफा मुज़फ़्फ़र साहिबा का और माजिद जमाल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे मदऊ किया और हम एक फैमिली की तरह इंशाअल्लाह आगे भी इकट्ठे होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। We are not complete. The actual pillars of 770 AM are producers. We are waiting for a couple more, and they are the
the best people and very strong. Everybody is doing their show. Along with that, they have their own channels as well, which are watched tremendously, not only in Canada but around the world. Around the world, please. It's great. Hello, I'm Rudy Cazzetto, the Member of Provincial Parliament for Mississauga Lakeshore, and it's an honor to be here at 7:07 a.m. With the group here, and I want to wish them a happy Eid as well today. And you know, it's always great to be out here with the community to learn about other communities. I look at myself and my family when they first came to Canada in 1950. You know, it was hard to simulate into the culture of Ontario or Canada, but groups like this make you feel at home and make you part of the family, and I think it's so important that we continue having groups like this together, celebrating together, and family is everything to me, and probably to everyone here. Family is very important. So congratulations to 770, and congratulations to everybody, and happy Eid. Thank you. Mr. Gazette, today I was doing work outside my home, and on the trail I started counting. And on that trail we counted around 13-14 times. The ratio, that is the reason these producers are very important and vital in the community, is because in Brampton every 10 out of the 9 people were the South Asians. It's a real visible majority at the moment, and I believe these are the definitely a bridge and a communication string between you, government, and the people outside. And I hope you will be in touch with all of them. I thank you very much for being here. I will be very in touch because the mayor of Brampton, his wife is my niece. So you know what, I have a lot of connections to Brampton, and I think the community is making Brampton the community that it is, and the part of the province of Ontario. You know, it's a mosaic of people. Be honest, when the Italians first immigrated, a lot of them immigrated to Brampton, as pretty well everybody knows that, and Mississauga as well. I think in the 70s, there was probably for every 10 people, there was probably 5 Italians at one time, right? But it's changed now. Now there's more South Asians than Italians now, especially in Malton and in those areas there. But I want to congratulate the community. And you see how beautiful Ontario and Canada is? We all live together in happiness. And that's how it should be all over the world. You know, like wars, you don't win anything with a war. At the end of the day, it's the regular people that suffer. Right, and that's the issue, right? Thank you very much for being with us. Thank you very much. And मज़ा भाई ने भी बात कर ली, आपने भी बात कर ली. आप कुछ कहना चाहते हो? Anybody else who would like to? You want to say something? लेडी केड़ी गल आ मैं बोलूँगा पंजाबी च ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾ ਦਈਏ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ thanks for you guys invite us because 770 beautiful people and beautiful all ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਕਿਉਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਤੜਕਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ 770 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਰਫਾ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 770 ਆ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਯੂ ਭਾਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 770 ਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਈਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਭਾਜੀ ਆਓ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੇ 770 ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਨੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਔਨ ਦਾ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦੇ ਤੱਕ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਮਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਫਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ। ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਨੂੰ 16 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ 770 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ, 1 ਡੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 7 ਡੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜੀ। ਸੇਮ ਹੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Very good evening to all, and we are very thankful to 770 family to organize a beautiful event, and I would like to say happy Eid and happy Vaisakhi to all our followers, all our colleagues, and it's a beautiful event. और सबसे ज़्यादा अगेन आरिफा जी और मजल भाई साहब, आप लोग हमेशा हमारे पीछे बैकबोन की तरह खड़े रहते हो, तो इस वजह से ही हम लोग अपनी जो बात है वो बाकी से कह पाते हैं, उसके लिए थैंक यू ऑलवेज़। और सबको एक बार फिर से ईद मुबारक और वैसाखी मुबारक। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जो ये फंक्शन चल रहा है जो वो ईद का भी है और साथ में बैसाखी भी है, कुछ मैं ऐड कर दूं, वो हिंदू फेस्टिवल भी है, रामनवमी। So not only there is one more festival, that is Christian festival. They are doing 40 days prayers near the Easter. So ये फेस्टिवल जो होते हैं, जो मंथ अप्रैल का मंथ है, वो सभी लोगों के फेस्टिवल हैं, खुशियाँ बांटते हैं। नफ़रत कम होनी चाहिए। जो कहते हैं कि हमने कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा, लड़ते हैं वो जिन्हें पढ़ते नहीं देखा। तो if we try to understand, all are same, all the no doubt the names are different, but the power is one. So if we realize, then there will be no hatred, no gospel or anything, but only the love is there. Thank you very much. Beautiful lines. Thank you, Baji. Thank you very much, Rudy, for joining us. And it's good to see all these stars together. ਔਰ ਆਰਫਾ ਬਾਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨ 에ਅਰ ਤੋਂ ਹਮ ਆਪ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਪਿੜ ਜਮਾਇਆ। ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਰੂਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਯੋਰ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਰਾਈਟਸ ਔਨ ਯੂ ਫॉर 770, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਇਨਵਾਈਟ ਹਿਮ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਮਾਦ ਪੀਟਰ ਦਾਮਾਦ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਪੈਟਰਿਕ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੂਡੀ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸੁਬਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਮ ਜਿਸ ਸੇ ਮਿਲੇ ਆਜ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਮ ਜਿਸ ਸੇ ਮਿਲੇ ਆਜ ਉਸकी तो हुई ईद मुबारक, ਉਸकी तो हुई ईद मुबारक। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਮਨੌਮ, ਉਹਦੀ ਵੀ शुभकामनाएं। तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरफा बाजी। माजिद भाई भी बात करते हैं। मुझे देखिए, ये मल्टी कल्चरल सिस्टम का एक बेनिफिट होता है, एंड आई थिंक इस टू लिव इन दिस कम्युनिटी वी रिस्पेक्ट ऑल द इवेंट्स, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर रवि that he brought it in our notice that it is not only Eid and Vaisakhi, there is a festival going on for the Hindu community, and there is a festival going on for the Christianity as well. It's a month of Easter. And of course the Christians, we know they do fast for 40 days, and their fasting is a bit tougher than ours though. But thanks to everybody, and it's a beautiful bouquet. 770 is a beautiful bouquet where, and I wish everybody, you must listen to these programs. I have a wonderful host here. She's a female. Please come here because इन तमाम आदमियों को इनकी ख़वातीन स्ट्रेंथन करती हैं और ये कम्युनिटी को जोड़ के रखने, दे ऑल कीप कम्युनिटीज़ टुगेदर। वी थैंक देम टू योर फैमिलीज़ दैट यू वर्क डेडिकेटेडली एट 770. So she's a wonderful host. Basically she's a realtor, and on top of that she does बहुत खूबसूरत अल्फाज में अपनी थॉट्स को लोगों तक लेके आती हैं। आप भी बात कीजिएगा। Thank you so much, Arifa ji, and thank you so much to 770, the whole team, I can say. And it's a wonderful experience.
that in this team, and I learned a lot actually. And thank you so much to Sodi Nagra, who I started with, and. Sodi he brought so many people in this field. Yeah. I know him for 17 years. जी. He gave this chance to many people. ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਤ ਹੁਣੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਢੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੋਸਟ ਆਫਟਰ ਫਿਊ ਡੇਜ਼, ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਰਨੀ and I'm still learning a lot. Thank you so You're much. the best. You're the best. Thank you. I have a wonderful person, and I definitely want to go to his table. I appreciate it because I think once we earn, I learned something good today. When we go to the restaurant, sometimes we put so much food on the plates and we let it go and we waste it. There are people in the world that don't have food on their tables. Rana Sidhu is here because I'm so sorry that I interrupted him while he was eating, but he said, I respect my food. And I don't want to waste my food, so that is Rana ji. He's a very let me tell you, he is the most stylish man in our studio. Yes, he always wears brands and combination. His matching from turban to toe is always phenomenal, and he is known for that. Rana ji. Thank you very much and welcome. Really appreciate you're here. And ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। और वो कौन सा दिन है डॉक्टर साहब? नवरात्रि तो बड़ा खास प्रोग्राम है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਰਾਮਨਵਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕੱਲੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 3 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਲੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ 770 ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you very much. Thanks to everybody. And Rafiq साहब बहुत ज़बरदस्त इंसान, इन्होंने हमेशा वॉल्टियर वर्क किया डॉन वैली के इलाके से, चाहे वहाँ पे क्रिकेट का ग्राउंड बनना हो, चाहे किसी ज़रूरतमंद के लिए, चाहे मेंबर पार्लियामेंट्स के साथ, कैप्टन विन साहिबा के साथ आपने काम किया। एंड शफीक भाई इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस। शफीक भाई थोड़ी सी भी बात करने आप। मैं सिर्फ आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा जी। आप थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, और आप सबका बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी खुशी हुई। ईद मुबारक सबको। थैंक यू सर। भाई अब्दुल रशीद, सोनिया सिद्धू जी की तरफ से इस वक्त आप पहुँचे हैं, सोनिया सिद्धू जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके ठीक, आप भी बात कर लें। जी हाँ, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने इनवाइट किया, और सोनिया जो है हमेशा आपकी तारीफ़ करती हैं कि शी इज़ वंडरफुल पर्सन एंड शी इज़ वेरी नाइस। आरफा जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इससे अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. His programs are not ordinary programs. I think a person with the depth. I always remember Ashfaq Ahmed used to write beautiful dramas and articles, always impressive. He's just like that. Janab Charanjit Barar, he brought his wife also. She runs a boutique. आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अरफा जी, आप इतना प्यार देते हो, इसके लिए बहुत हम आपके हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। He came with. I'll introduce you to one more person. Now I will go to my own team because 770 is incomplete without our associates, without our members. One of the member who is Sarwat, her husband is also here. I would like to introduce him, Farooq. This is Farooq. Sarwat, please come. So I understand sometimes at the station we have extra hours or extra time needed, and I think my associates, I'm always thankful to them, but the most I'm thankful is to their families. And I thank Farooq. Thank you very much for being with us.
No, thank you. Thank you for inviting us. I think it was a good occasion. और मैं क्या कहूँ, इसका सब लोग आए यहाँ पे, मैंने सुना आप लोगों को यहाँ पे, और मुझे लगा जैसे वो बुके का है ना, उसको उर्दू में कहें तो अच्छा लगता है, गुलदस्ता गुलदस्ता अच्छा लगता है। और मुझे बैसाखी से बार बार याद आ रहा है कि हम लोग पाकिस्तान में बनाते थे जश्न बहारा, और उसको भी कहते थे फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तो ये बैसाखी वही है, और इत्तेफाक से ईद और इकट्ठी सब चीज़ें आई हैं, तो उससे और अच्छी क्या बात हो सकती है। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ आई टेक यू टू वन मोर पर्सन, माजिद जमाल साहब इज़ ऑल्सो हियर। ओ समबडी सेड, आज मैंने कहा मैंने माजिद जमाल साहब पे पाबंदी लगा दी थी कि आप आते हैं तो यू हैव टू ब्रिंग योर वाइफ, एंड द पर्सन टोल्ड मी कि अजीम मियाँ साहब को मैं एक्नॉलेज करना चाहती हूँ। कहते हैं माजिद जमाल अपनी बीवी का पटोले की तरह ख्याल रख देने। अब अगर मैं इनको कहूँगी तो इनको तो समझ नहीं आएगा कि पटोला होता क्या है। वहीदा जी, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम आरफा जी, thank you for calling us. She's a very talented person. I remember once upon a time when things were little easier at our office. She used to take care of our website and used to take care of many of our problems. But now she is more into very many other things. She is a very talented and Now grandma duties. thank you very much. I miss 770. Gitiara ji always behind the mic. जी गीतियारा जी, भाई मैं तो यही कहूँगी, हो सकता है गलत शेर पढ़ूं, कि उनके आ जाने से जो आती है चेहरे पे रौनक, रुख पे रौनक, बीमार का हाल। तो वाकई 770 को पे जब स्टार्ट होता है उसको देखें और सुने तो वाकई हंसी आना शुरू हो जाती है, मज़ा आता है। माशाल्लाह इतने खूबसूरत मज़ेदार बातें सुनने को मिलती, क्या पॉलिटिक्स हो, क्या फ़नून हो, क्या शायरी हो, मुझ जैसी ना हो लेकिन इट वाज लाइक अमेजिंग। मैं समझती हूँ सबको और लोगों को ज्वाइन करना चाहिए और इस फ़न में आई एम रियली इम्प्रेस्ड। माशाल्लाह, थैंक टू हर and Yasmin and Sabuhi and Sarwat and everyone. सबके नाम मैं याद नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं बच्चों के भी नाम याद नहीं रखती हूँ, मैं सबको एक ही नाम से बुलाती हूँ बहुत शुक्रिया गीतियारा जी, बहुत शुक्रिया। आई हैव अनदर पर्सन, आमिर हमारे कैमरे के पीछे आमिर हुआ करते होते हैं। हमारे जितने प्रोग्राम्स आप देखते हैं, आज महनाज साहिबा तशरीफ लाई हैं। आमिर एंड महनाज, दे केम हियर, दिस इज़ द ओनली कपल विच हु केम with the beautiful combination, with the matching. Mehnaz, thank you very much. Thank you very much for inviting us. You are so nice, and we always obliged कि आपने हमें याद रखा हमेशा। ये महनाज की सास है, आज देख रहे हैं बहू और सास कैसे खड़े हैं। महनाज मेरी बहुत प्यारी, वो कहते हैं ना कि मुझे वाकई दिल से अजीज़ है, बहुत प्यारी है महनाज। मगर आमिर और माजिद जमाल की स्ट्रेटजी एक ही है, ये डिवाइड एंड रूल पे चलते हैं। So जैसी आँख वैसी परख। Stay tuned. I will introduce you to one more person, and that is Sabu here. Sabu, we are very proud of Sabu. Yes, Sabu. बहुत शुक्रिया आरफा जी। मैं कितना खुश हो रही हूँ उन सब लोगों को देख के, उनसे मिल के, जिनकी इतनी प्यारे प्यारे स्पाउसेस हमारे साथ काम कर रहे हैं चैनल पर, उनकी आवाज़ों को सुन रहे हैं हम लोग इतनी अरसे से। आज उनकी जो उनकी फोर्स बिहाइंड उनके है, आज उन लोगों से भी मुलाकात हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आरफा जी कि आपने इतनी खूबसूरत ये कहकशां सजाई है जिसमें डिफरेंट सितारे हैं, हमारे सोडी भाई, राना जी, चरणजीत जी, रवि जी और सब लोग, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू। अब आप ज़रा जाइएगा एक और शख्स से। शी इज़ ऑलवेज देयर इन द फील्ड विद अस, एंड दैट इज़ मिनू जी। Minu ji is the most stylish person in a way. She is with beautiful colored hairs, and today I think I must have something like this. Yes, Minu ji. मैं जी आरफा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रीज़न की वजह से नहीं, शुक्रिया अदा करना रीज़न है, उस वजह से मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि मेरी आंखों में आंसू भी आए हुए हैं थोड़े थोड़े। वो क्या ईद हो, क्या शब रात हो, क्या वैलेंटाइन हो, क्या न्यू ईयर्स डे हो,
जिनका कोई है तो सब, लेकिन सब बिज़ी होते हैं और मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ कि कब इनके पास जाऊँगी और ये ऑलवेज़ मुझे वेलकम करती हैं एंड आई फील सो हैप्पी. I love you. I love you. You're always there in my heart. Thank you. Barbie. She's so pretty. She's so pretty. Look at मिन्नू जी की खूबसूरती है कि मिन्नू जी के अंदर का बच्चा जिंदा है. She's always happy, healthy and a wonderful person. Thank you. इस मौके पे एक बात कहूँगी. इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मनाओ रंग रली, गम छोड़ के मनाओ रंग रली. मैं इस मोटो पे जीती हूँ. बहुत शुक्रिया. अच्छा, आज के प्रोग्राम में मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन पेरेंट्स का जिन्होंने मुझे मौका दिया. एंड आई ऑलवेज, दिस इज़ नॉट समथिंग कि माइक के ऊपर मैं कह रही हूँ, आई मीन इट, कि हमारी यूथ जो है वो मेरा रोल मॉडल है. आई बिलीव सो. दे कीप मी, आज के लिहाज से सोचने पे मुझे रखते हैं वेरी पॉजिटिव, वेल प्लेस्ड. और मेरा मुस्तकबिल, हमारा मुस्तकबिल इज़ इन द हैंड्स ऑफ दीज यंग पीपल. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ अ वंडरफुल पर्सन. इनका नाम अतर है. एंड अतर, माशाल्लाह, मैं एक बात कहूँगी कि हमारे बच्चे जो वेल प्लेस्ड, वेल एजुकेटेड हैं, दे आर सर्विंग एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. They are contributing a lot towards this community. Would you mind to say something and any good advice for people like myself? Like yourself? It should be the other way around, right? No. Because let me tell you, as I was talking to someone else as well, we are kind of messed up. We have our own issues because we were raised and over there, our youth over here, they are very straightforward, truthful, they are very focused. They don't waste their time into any nonsense. So we need your advice in that. I would just say, like, don't forget your culture. You know, you come to North America, make sure if you're Pakistani or Indian, you keep some of that at home. If you just assimilate, then you're just like everyone else. So keep your roots. That's the thing. मैंने आपसे कहा ना, 2 लफ्ज़ों में बात मुकम्मल की. Don't forget your culture. Assimilate करें. What a beautiful statement. Thank you, Atar. Thank you very much. मेरे साथ अब एक और, he is a student. हाँ, आप शाजिया जी को सुनते हैं. शाजिया जी का बेटा, माशाल्लाह, he wants to be a lawyer. क्या फरमाओ? Work smart, not hard. Work smart, not hard. Anything else? In Canada, if you work hard enough and you do everything right, you will make it. But always remember that you can do as good as you want, but if you don't have trust in God, it will go down. So always keep trust in God. Always know that He's doing good for you and your family. Trust in God, and I believe, I would like to add something, what the mind of man conceive and believe, mind of man can achieve. If you do things in the right way with the whole trust in it, success will always be there. Thank you very much. Exactly. शाजिया जी भी बैठी हैं. शाजिया जी, आज के इस इवेंट को अरेंज करने में शाजिया जी ने बड़ा रोल प्ले किया. जी शाजिया जी. जी नहीं, बिल्कुल नहीं. बस हम जो हैं अरफा जी के जो है अंडर हर अम्ब्रेला हम हमेशा अपनी कोशिश करते हैं कि हम 770 पे द बेस्ट लेकर आएँ और द बेस्ट लेकर आपके लिए आएँ. और बस यही हम चाहते हैं कि चाहे कोई भी आपका मज़हब है, मज़हब एक ही है लेकिन ह्यूमैनिटी, तो ह्यूमैनिटी जो है उसको याद रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें. जो कुछ जो हम कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में, किसी को ना कहें कि भाई आप कर लो, अपनी कैपेसिटी में जो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं वो ज़रूर करें. अपने हमेशा ख्याल रखें कि हम बेशक कनेडियन हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसा कुछ ना करें कि आपके मुल्क को बैड नेम जाए. ऐसा काम करें कि हमेशा लोग आपको रोल मॉडल समझें, आपको ऐसा समझें कि जिसको लीड किया जा सकता है. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. टोनी जी भी आ गए हैं, हमारे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं. ही डज़ प्रोग्रामिंग ऑन सैटरडे एंड संडे. एंड लेट मी टेक यू टू टोनी जी.
टोनी जी वो कहते हैं देर आया दुरुस्त आया। ईद मुबारक आपको पहले तो। हेलो जी, हैप्पी बैसाखी। हैप्पी बैसाखी एंड ईद मुबारक आपको। हैप्पी बैसाखी, ईद मुबारक। और नवरात्रि का प्रोग्राम है। द ब्यूटी ऑफ दिस कल्चर इज़ दैट वी सेलिब्रेट ऑल द वी दूसरे को रिस्पेक्ट दे के सिर्फ रिस्पेक्ट मिल सकती है। वी लिव टुगेदर, इट्स आवर एडॉप्टेड कंट्री वेयर वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड लव एवरीबॉडी। थैंक यू टोनी जी थैंक यू फॉर कमिंग। अरफा जी बहुत अच्छा लगा 770 की पूरी टीम एक साथ देख के मज़ा आ गया जी। और ऐसे प्रोग्राम काफ़ी देर के बाद अभी हुआ है, मेरे को कंप्लेंट भी थी, लेकिन लास्ट टाइम भी हम जहाँ ही इकट्ठे हुए थे। रिमेंबर कंप्लेन आप कर नहीं सकते बिकॉज आप सबसे लेट आए हैं। नहीं, मैं जाऊंगा अभी बाद में ही। बहुत अच्छा लगा सारी हमारी टीम एक साथ देख के। और एक बार फिर जितने भी भाई बहन आए हैं सभी को बहुत बहुत मुबारक, बैसाखी की भी और ईद की भी। थैंक यू। मुझे देखिए नॉलेज में इजाफा हो गया। नवरात्रि, अब वंडरफुल ब्रदर ऑफ माइंड दैट इज़ फयाज़ विलाना साहब। बहुत शुक्रिया फयाज़ विलाना साहब का। और मैं ये कहती हूँ कि हमारा ट्रस्ट होता है, हम अपनी फैमिलीज़ को हर जगह अपनी फैमिलीज़ को बाज़-औक़ात हर जगह पे लेके जा नहीं सकते, मगर फयाज़ विलाना साहब बहुत प्यारा भाई। प्रोफेशनली मैं इनकी दो चीज़ों को अप्रिशिएट करती हूँ और जो अब भी कहना चाहूँगी, मास्टर्स किया आपने फ़िज़िक्स पे, हाफ़िज़े कुरान भी हैं, मगर उन्होंने कभी अपनी उस स्ट्रेंथ का ज़िक्र नहीं किया। खुदा करे कि जो हम मानने वाले हैं हम उन अल्फाज पे गौर करते हुए उस मैनुअल ऑफ लाइफ को फॉलो कर सकें। फयाज़ भाई फुल ग्रास्प है उनकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर, विच इज़ ऑफ कोर्स जर्नलिज्म के हवाले से। जी फयाज़ भाई थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू भाई जी, आपका शुक्रिया कि आपने ईद के मौके पे मुझे नहीं याद रखा, बल्कि आपने अपनी पूरी टीम को याद रखा। और ये जो आपके पास प्रोड्यूसर्स हैं, रेडियो के 770 AM के प्रोड्यूसर्स, आपके ई आवाज़ टेलीविज़न के प्रोड्यूसर, आपके प्रेजेंटर्स, आपका टेक्निकल स्टाफ, और आपने सिर्फ उन्हें नहीं बुलाया, आपने उनकी फैमिली को भी जोड़ने का एक मौका किया। हम इन सब लोगों को ऑन एयर तो सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, और इनकी अपनी अपनी फील्ड में अपनी बहुत मानता है। आज आपने ये मौका दिया अपनी ऑडियंस को कि वो उन सबको एक रूफ़ के नीचे देख रहे हैं। अब ये प्रोग्राम जब ऑन एयर जाएगा तो लोगों को बहुत सारे चेहरे जो लोगों ने नहीं देखे हुए, फॉर एग्जांपल हमारे रेडियो के चेहरे तो लोगों ने नहीं देखे होते। ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं कि फेसबुक पे हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है उनको भी नहीं देखा होगा। लोग जानना चाहते हैं, लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि ये बंदा कौन है जिसको हम सुनते हैं, ये क्या करता है, ये कहाँ है, ये कैसा दिखता है, और फिर ट्रेडिशनल ड्रेस में कैसा दिखता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों की, और ये इसलिए होती हैं क्योंकि लोगों ने इससे फिगर आउट करना होता है कि जो बंदा हमें रोज़ ऑन एयर आके हमें भाषण देता है, अपनी नॉर्मल लाइफ में ये कैसा है। वहाँ से लोगों ने ये कनेक्ट करना होता है कि ये कितना सच बोलता है, क्योंकि एक्चुअल में इसका क्या है। तो ये आपने ये बहुत अच्छा किया। और फिर खुशी का मौका इसलिए भी है कि ये सिर्फ ईद ही नहीं बल्कि ये बैसाखी का भी त्यौहार आ गया, नवरात्रि भी आ गई, और फिर वो नोम बता रहे हैं उनका, हिंदू वालों का भी वो भी है, और क्रिश्चियनिटी का बताया रूडी ने, जिस तरह MPP रूडी ने बताया कि क्रिश्चियंस का भी एक फेस्टिवल है। तो इट्स अ काइंड ऑफ मंथ ऑफ फेस्टिविटी, और आपने दिन भी सही चुना। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू, और फिर आपकी टीम को कि सरवत ने एक एक बंदे को फ़ोन करके वो हमारे पीछे पड़ी नहीं कि आपने ज़रूर आना है, हर सूरत आना है। We just wanted to make sure कि everybody must be present। फयाज़ भाई जब हमारी खुशियाँ होती हैं तो हम बाज़ चीज़ों को भूल नहीं सकते। इस वक्त थोड़ा सा मुझे जो इस ओवर द वीकेंड फ्राइडे से जो मामला चला, स्टॉक मार्केट पे भी बड़ा इसका असर गया है, मगर मैं देख रही हूँ कि ईरान के साथ देयर वाज अ टाइम कि पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। कुछ लोग हर चीज़ को डिफेम करने की कोशिश करते हैं। ईरान इज़ द ओनली कंट्री विच टुक अ स्टैंड। और आज अगर आप CNN या किसी भी मीडिया को आप देख लें तो वो ये खबर यही थी कि टू रिटेलिएट वो जो दमस्कस में अटैक हुआ था, उनके जनरल्स की डेथ हुई थी, ईरान ने ये किया। मगर कुछ लोग जो डिफेम करना चाहते हैं वो कहते हैं कि ईरान भी एज अ टाउट काम कर रहा है, जिसका मुझे दुख ज़रूर है कि ईरान हैज़ पेड द मोस्ट ड्यूरिंग दीज टाइम्स, जिसमें अमेरिका की सैंक्शंस भी लगी, ख़ित्ते में ईरान के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की गई। तो थोड़ा सा मैं आपके, क्योंकि आपके तज्ज़ियात और एनालिसिस, लेकिन आप देखें ना कि अभी ईरान ने जो किया गुज़श्ता रात,
उस पे जो बाइडन का जो रिएक्शन है, जो बाइडन ने इसराइल को कहा है कि अब अगर आपने जवाबी हमला किया तो आपको जवाबी हमला करने से पहले हमें बताना पड़ेगा। परमिशन का वर्ड नहीं यूज़ किया उसने, लेकिन मतलब उसका परमिशन ही है, क्योंकि अमेरिकन्स नहीं उस हद तक जाना चाहते, इस जंग को उस हद तक एस्केलेट नहीं करना चाहते। क्यों? कि उन्हें पता है कि कनाडा अनाउंस कर चुका है कि हम मज़ीद असला नहीं भेजेंगे यूक्रेन को। कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने तीनों ने एक अपना एक इत्तेहाद अनाउंस किया है और तीनों ने कहा है कि हम साथ नहीं जाएंगे। बरतानिया पहले कह चुका है और पता नहीं कितने यूरोपियन कंट्रीज़ इस मामले में आ चुके हैं। तो ये यूक्रेन की जितनी लंबी हुई है ना जंग, इस दौरान जितनी आलमी कसाद बाजारी का हम शिकार हुए हैं और जितना दुनिया एक उससे और सबसे ज़्यादा अमेरिका सफ़र कर रहा है। हाँ, सफ़र कर रहा है। उनको ये लेसन तो हुआ था उनके पास कि एक वहाँ जंग छेड़ ली है, वो ख़त्म नहीं हो पा रही हमसे, तो अब अगर दूसरा भी ये महाज खुल गया तो ये कोई आसान नहीं होगा। स्पेशली जब सऊदी अरेबिया, UAE वो जितना उनका इसराइल को तस्लीम करने वाला प्रोसेस पिछले 1.5-2 साल में आगे जा चुका था, वो स्टॉप हो गया है सारा। क्योंकि जिस तरह आज 3 कंट्रीज़ की तरफ से अटैक किया गया है, जॉइंट अटैक है, और फिर जो पब्लिक में परसेप्शन है, पब्लिक में परसेप्शन ये है कि इसराइल ने ज़्यादती की और फ़लस्तीनियों का दिस इज़ द टाइम कि फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ जाए, और ये टाइम है। और वो उसमें ईरान अगर खड़ा हुआ है तो अब लोग अपने ज़ाती जो कंट्री टू कंट्री लोगों की अपनी एक फीलिंग्स होती हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट लोग ईरान के साथ खड़े हैं कि हाँ किया है। क्यों? कि उन्होंने दिन दहाड़े दमिश्क में उनके उस पर अटैक किया और उनके अलकुद्स ब्रिगेड के जो जनरल थे उसको मारा। तो इतना सीवियर अटैक, उसको रिटेलिएट तो करना था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि हम टाइम अपना करेंगे। बड़ी सही तरीके से आपने ये बात की, मगर मेरा एक कंसर्न यहाँ पे आ रहा है कि आप देखिएगा कि एक तरफ प्रेसिडेंट बाइडन का अगर आप फर्स्ट एड्रेस सुने तो उन्होंने कहा है कि वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट इजराइल। उन्होंने कल ये भी बयान दिया। बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में नहीं, वो बिल्कुल एकदम पीछे नहीं जा सकते, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक उन्हें अपनी सिचुएशन चेंज करनी पड़ रही है। वरना पहली जो सूरत हाल थी वो यही थी कि बग़ैर इजाज़त वो उन्हें कहते कि जो करना है। लेकिन अब जो बाइडन ने कहा है नहीं, अब अगर आपने रिटेलिएट करना है, आपने जवाबी हमला करना है तो हमें पहले बताएं। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया इफ़ियाज़ भाई, हिज एनालिसिस आर ऑलवेज ग्रेट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम आरफा जी, क्या हाल है? ठीक ठाक? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके आने का। नहीं, आपके बुलाने का शुक्रिया। पता है नहीं, अभी नहीं जा सकते दीपक भाई। वो उनका ख्याल है मैं आपको जानती नहीं जा सकते। शादी कितनी उसको ख्याल है मैं आपको जानती नहीं। अज बंदा चेंज कर बैठे, मैं क्या परजाई कितने साड़ी कहते मैं दूसरा बंदा लेके आ गया। अज मैं बंदा चेंज कर देता है। पेड़ से पहले प्लांट होता है, प्लांट से पहले एक बीज होता है। वो जो बीज है मेरी पॉलिटिकल जर्नी का, वो 770 AM में लगा था। और आरिफा बाजी वाजिद साहब वर द पीपल हु not only supported me, they actually showed me the way how to do things. मगर मैं दीपक आनंद जी मॉल्टन वार्ड नंबर 5 से हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं। I'm very proud कि once he came to Canada, he started a radio program, और वो प्रोग्राम ऐसा था कि नेटवर्किंग थी जिसमें he used to bring in all the agencies helping people. बाजी, It was a great यहाँ पे जो हमारे साउथ एशियन होते हैं वहाँ पे एजेंसी का मतलब होता है रॉ, ISI हैं। आप ये बता दें कि जो यहाँ की मैं बता देता हूँ क्या करते थे हम लोग। तो पुष्कर जी आप पहली बार आए तो आप भी सुन लीजिए। तो हुआ क्या था कि when I thought कि I want to get into the political arena, तो अरुणा कहने लगी कि ऐसे नहीं होता है। First you have to do something, you have to give back to the community so that community understands और you know the pain of the community। तो मैं बोला मैं वो कहाँ से लाऊंगा, मेरा तो ऑटोमोटिव का बिजनेस था। तो शी सजेस्टेड कि 770 AM पे जाओ, एंड देन आई मेट आरिफा बाजी एंड माजिद साहब। It was a great time. हाँ, great time. Many people got help from that. Everybody who was in need. तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में हम 2 चैरिटीज़ जो होती थी, जैसे आपकी इंडस कम्युनिटी सेंटर हो गया या फिर आपकी PCHS हो गया, ऐसी चैरिटीज़ जो पब्लिक सर्विस देती थी, हम हर हफ्ते उनमें से 1 या 2 पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाते थे और लोगों को कहते थे, उनसे पहले पूछते थे कि आप
क्या सर्विस देते हो, तो वो बताते थे हम ये अगर आपको किसी को हेल्थ का इशू है या मेंटल हेल्थ का इशू है या आपको घर की रिक्वायरमेंट है या आपको डायबिटीज़ है, सो वी हेल्प इन दैट एरिया। फिर हम कहते थे लोगों को कि आप थ्रू फ़ोन रेडियो में जुड़िए, आप अपना प्रॉब्लम बताइए, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टिग्मा होता है, लोग नहीं चाहते कि भी मेरे घर में एक बच्चा है जिसको ऑटिज़म है या मेरे घर में डायबिटीज़ है या अपना जो यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, डायमेंशिया है, अल्जाइमर है, डायमेंशिया है, तो लोग वो नहीं बताना चाहते। तो हम बोलते थे उनको कि अगर आप अब रेडियो पे हैं, आपकी शक्ल तो नहीं दिख रही है, आप अपना नाम मत बताइए, आप सिर्फ ये बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो उससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। आरिफा बाजी, अभी भी मुझे याद है आपने हमेशा हमारा साथ दिया, साथ क्या दिया, मार्गदर्शन दिया हमें। यू नो ये दिखने में स्वीट है, अंदर से भी बहुत स्वीट है, पर ये कड़क भी बहुत है। मगर मैं बहुत आज ये मेंबर रेडियो के ऊपर बोल देती थी। आज ये मेंबर पार्लियामेंट है, मगर मैं ये कहती हूँ मेंबर पार्लियामेंट हु स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रास रूट। उसने लर्न किया इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, एंड टुडे ही इज़ देयर इन क्वींस पार्क टू take care of those matters. Thank you very much for coming here. ऑलवेज़ अ प्लेजर। आरिफा बाजी, आपका शुक्रिया, 770 AM का शुक्रिया। एक कुछ कर्ज ऐसे होते हैं आप उनका प्रिंसिपल भी नहीं चुका पाते, छोड़े इंटरेस्ट तो बहुत बात की बात है। एंड 770 इज़ दैट व्हाट प्लेड रोल इन माई लाइफ। आई कैन नॉट थैंक इनफ 770। थैंक यू वेरी मच। आइए कुछ चीज़ लीजिएगा। सलमा जाहिद साहिबा, मैं जितना सलमा साहिबा को जानती हूँ, बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं पाकिस्तान से आया, वेल सेटल्ड था, यहाँ पे मेरे पास जॉब होनी चाहिए, एंड दैट्स यू नो व्हाट दिस इज़ हाउ इट इज़। मगर सलमा साहिबा ने जब यहाँ आई, अगेन अभी मैंने दीपक आनंद की बात की, तो इन्होंने भी ग्रास रूट लेवल से काम शुरू किया। शी लर्नड द प्रोसेस, शी डिड वॉलंटियर वर्क, बहुत वॉलंटियर वर्क आपने किया, और उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के बाद आप इस सिस्टम में आई। आपके तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। आरफा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, आपको बिलेटेड ईद मुबारक, और हमेशा आपसे मिलके बहुत खुशी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सलमा जी, मैं आज क्योंकि हमारे सारे प्रोड्यूसर्स भी यहाँ मौजूद हैं, आज बैसाखी के लिहाज से, नवरोत्रा के लिहाज से, एंड देयर इज़ वन मोर इवेंट, क्रिश्चियनिटी का भी इवेंट है। वी थैंक यू वेरी मच। और मैं आप कुछ खा लीजिएगा, फिर मैं आपकी अपने प्रोड्यूसर से मुलाकात करा दूँ। मेरी मुलाकात हुई है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका हमेशा सबको इकट्ठा करना और कॉजेज़ को रेज़ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। शी इज़ ऑलवेज देयर व्हेनेवर वी कॉल हर। मगर मज़र शफीक साहब को मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगी इस मामले पे कि उन्होंने ब्रिज किया हमेशा इन तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स के मैसेज को, कि चाहे वो ख़बर हो, चाहे वो प्रेस रिलीज़ हो, सो ही ऑलवेज। हाँ, नहीं मज़हर भाई हमेशा करते हैं जी। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मज़हर भाई का सारा नेटवर्क जो है मीडिया के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वो हमेशा मुझे जो है ना वो इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ चाहिए हो, पास ऑन करते रहते हैं। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मीडिया के थ्रू लोग अपने जो हैं कनेडियंस, पाकिस्तानी डायस्पोरा को, उनको हर चीज़ से आगाह रखती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग अपनी ज़ुबान में मसाइल को सुनना चाहते हैं, तो आपका शुक्रिया वो मसाइल लोगों तक पहुँचाने। बहुत शुक्रिया। हम मसाइल को लेते हैं और आप जैसे काबिल कदर लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सोल्यूशन भी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। थैंक यू। ये ले माइक। आप आइए। जो ठीक है, सबसे पहले तो 770 AM जिंदाबाद, ई वाह जिंदाबाद, ठीक है जी, ई वाह जिंदाबाद। और मैं ये कह सकता हूँ कि आई कैन से दिस थिंग के कम्युनिटी को, सारी साउथ ईस्ट, व्हेन वी से कम्युनिटी, इट्स नॉट जस्ट साउथ एशियन कम्युनिटी, इट्स द इंटायर कम्युनिटी, उसको जो सर्विस
ई आवाज़ ने दी है, 770 AM ने दी है, और नॉट दैट आई एम स्टैंडिंग बिसाइड्स आरिफा जी एंड माजिद जी, जो उनकी देन है वो बहुत ज़्यादा है। एंड टुडे वी हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एज वेल। आई highly recommend and request that we must acknowledge, maybe my viewpoint could be bit biased because I am part of the family of 770 AM, but honestly speaking, I've been to many different media outlets, but the contribution that this channel has done to the community is amazing, and I have no hesitation in saying, I will never say this for any other channel, it is number one. मैंने कभी नहीं कहा, और युद्धवीर जी का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मगर वो कहते हैं ना, जिन लोगों पे हमारा मान होता है, हम ये भी कहा करते हैं, आपको पता है, पाकिस्तानियों को पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? कुट्टी हो गई। कुट्टी हो गई। I waited for him for a long time from 6 to 8, but I thank him very much. He is such a wonderful person. एक बात मैं, इनकी मिसेस यहाँ पे नहीं भी मौजूद, तो मैं ये कहूँगी, नहीं मुझे पता है, मैं नहीं भी यहाँ मौजूद, मगर मैं ये कहती हूँ कि every man, if the man is great, there is a power behind him. That can be his mother, and that can be his wife, and that can be his children. प्रीत जी, it's not that मैं युद्धवीर जी को कहती हूँ, probably युद्धवीर जी ने sometimes, there are times कि उन्होंने अपने आप को कोन में लेके जाने की कोशिश की, यही couldn't express, but I think the woman behind him, that is प्रीत जी, she is such a wonderful woman, she gives him courage, और वो कहते हैं ना, पिछों लेके आगे चल देने, and then he delivers. This man then delivers. Thank you very much for coming here. Thank you for the invite. Thank you. ईद की सबको बहुत मुबारक। और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया जो यहाँ आई, उन लोगों का बहुत शुक्रिया, गुरप्रीत जी और सिमरन जी। अच्छा हुआ देख लिया आपको मैंने, ठीक है, थैंक यू गुरप्रीत जी, थैंक यू वेरी मच। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਅਸੀਂ ਈਦ ਮਿਲਨ ਦੀ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ, ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਲਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਹੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਆ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਬਸਤਾ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ। थैंक यू वेरी मच राणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर रवि, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। अच्छा, ये जो मंथ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तो हमारा जो है ईद का त्यौहार चल रहा है, एक हिंदू फेस्टिवल चल रहा है, एक क्रिश्चियंस का चल रहा है, एक वैसाखी भी चल रहा है सिखों का। तो ज़रा ये जो मंथ है और ये जो सारे फेस्टिवल्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस पे थोड़ी सी आप बात करें। हाँ, सबसे पहले तो बात ये है कि जितने भी धर्म हैं, हर धर्म की अपनी अपनी रिचुअल्स हैं, अपने अपने त्यौहार हैं, लेकिन इट्स बिकॉज ऑफ नॉलेज, बिकॉज लैक्स ऑफ
कम्युनिकेशन हम एक दूसरे धर्म के बारे में जानते नहीं हैं। जैसे इस्लाम में और मुस्लिम भाईचारे में ये रमज़ान का महीना था, अभी ईद ख़त्म हुई है, बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली हिंदू धर्म में भी इसको हम बोलते हैं राम नवमी। वो भी सेम तरीके से जैसे ये 30 डेज़ रमज़ान का फास्ट रखते हैं मॉर्निंग टू नाइट, इसी तरह हिंदू धर्म में भी नाइट 9 होती हैं वो फास्ट रखते हैं, लेकिन साल में वो आती रहती हैं। और उसके बाद जैसे इसको ईद बोलते हैं वहाँ पर अष्टमी बोलते हैं, उसी तरह खुशियों से मनाया जाता है। जहाँ तक क्रिश्चियन लोगों का सवाल है, वो ईस्टर के बाद 40 डेज़ प्रेयर करते हैं इन मेमोरी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो ये फेस्टिवल है, सभी खुशियों से मनाते हैं और महीना अप्रैल का है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि अरफा जी ने ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया है, तो और भी खुशी होंगी, दुआ कर खाएंगे, दुआ कर गपशप मारेंगे, और इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। आप सुनाएं आपकी ईद कैसी रही? मैं आपको एक और मुबारकबाद भी देती हूँ। ज़ीशान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्लाह ताला ने इनको इतनी ज़बरदस्त ईदी दी है, इनकी ईदी अल्लाह की तरफ से आई है, और माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी फ़ैमिली में एक नहायत खूबसूरत बेटे का इजाफ़ा हुआ है। अब हम ज़ीशान से पूछते हैं, नंबर 1 ये कि इनकी फ़ीलिंग्स क्या हैं बेटे को देख के, नंबर 2 ये बेटा कितने दिन का है और नाम क्या है बेटे का? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। अप्रैल की 11 तारीख 12:54 पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे अल्लाह की रहमत हुई है। तीसरा बेटा है मेरा, उस बेटे का नाम है हारून बिन अहमद। जाहिर सी बात है, जब फैमिली में कोई एडिशन होती है तो आपको एक्स्ट्रा फीलिंग तो होती है, एक्स्ट्रा खुशी होती है। बच्चे मेरे जो यानी कि दूसरे नंबर पे जो बेटा है वो 10 साल का है, 10.5 साल का है। तो 10-10.5 साल के बाद जो है दोबारा हमारे फैमिली में एक इजाफा हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक अच्छी फीलिंग होती है, घर अच्छा लगता है और एक मोहब्बत रहती है, एक प्यार रहता है। और ज़ाहिर है जब आप घर में कोई एडिशन होता है, नन्हा मेहमान आता है या कोई भी मेहमान आपके घर में आता है, आपको खुशी होती है, आपको दिल चाहता है उनसे बात करने का, एक अल्लाह की तरफ से एक मुसरत आपके दिल में आती है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, दिल में एक सुकून होता है, दिमाग में एक सुकून होता है, और फिर आपस में काम जो है बढ़ जाते हैं, तो उससे जो है और ज़्यादा मोहब्बत पैदा होती है आपस में। जिस तरह मैं अपनी वाइफ का हाथ बटा रहा हूँ, मेरे जो हारून के जो बड़े बहन और भाई हैं वो उनका ख्याल रख रहे हैं, रोता है तो उनको चुप कराना है, उनसे बातें करना है, उनको लाड करना है, प्यार करना है, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और ये ऐसी फीलिंग है कि थोड़ी सी इसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। अगर इस बारे में अगर बात करते रहें तो हम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से, पूरी ई आवाज़ की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक, और हमारी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुशियां दे, बच्चों को खुशियां दे, सेहत तंदरुस्ती दे, एंड स्टे वेल एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया, हम भी बहुत खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी बंदे की शादी नहीं होवी होंदी तो वो किसा मजबूर होना तो किसा कहना ताड़ी बजाना। ठीक है जी, जिन्हां दी शादी नहीं हुई ताड़ी हो। हाँ, सारे जड़ां दी हो गई है वो गमगीनी च मारन। अच्छा, साडी भी शादी कराओ लोको असी कुआरे मर गए, साडी भी शादी कराओ लोको असी कुआरे मर गए, सानू भी कोड़ी चढ़ाओ लोको असी कुआरे मर गए। क्या बात है। बेबे कहंदी मैं वहाँ छोटा, बेबे कहंदी मैं वहाँ छोटा, नाले हाली अकल दा खोटा, नाले हाली अकल दा खोटा, बेबे नू कोई समझाओ लोको असी कुआरे मर गए, साडी भी शादी कराओ लोको असी कुआरे मर गए। बेबे कहंदी चलावा मैं, बेबे कहंदी चलावा मैं, पुत्र भी ओदा कल्लावा मैं, पुत्र भी ओदा कल्लावा मैं, एक तू दो बनाओ लोको असी कुआरे मर गए। अच्छा, अब ये होता है कि बंदा बिल्कुल ही डेस्परेट हो जाता है, कहता है लंगड़ी लूली गंजी काणी, लंगड़ी लूली गंजी काणी, साडे लईए ओ होई राणी,
ਸਾਡੇ ਲਈ ਏ ਉਹ ਹੋਈ ਰਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਜਾ ਕਾਕਾ ਨਾ ਕਰ ਅੜੀਆਂ, ਮਨ ਜਾ ਕਾਕਾ ਨਾ ਕਰ ਅੜੀਆਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵੇਂਗਾ ਆਲੂ ਵੜੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਜੂੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਓ ਲੋਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੱਲ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁੱਲ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਸੇਰੇ ਬਨ ਬਨ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸੇਰੇ ਲਵਾਓ ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਰੇ ਮਰ ਗਏ। ये तो आपने मेमोरेबल बना दिया सिस्टम। अच्छा, शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, घर भी जाना है, शादी हो भी गई। कहंदा हाँ जी आ जाओ। ਵੇਲਾ ਉਸੀ ਚੰਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕੰਵਾਰੇ, ਵੇਲਾ ਉਸੀ ਚੰਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕੰਵਾਰੇ, ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਵੇਲਾ ਉਸੀ ਚੰਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕੰਵਾਰੇ, ਜਿਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਾਥੋਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਾਥੋਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਵੇਲਾ ਉਸੀ ਚੰਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕੰਵਾਰੇ। ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਦਾਲ ਪਕਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਪਵਾੜੇ, ਵੇਲਾ ਉਸੀ ਚੰਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। तो ये था हमारा आज का कम्युनिटी राउंड अप। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये छोटा सा जो हमने ईद मिलन की पार्टी की थी वो ज़रूर आपको हमारी एफर्ट पसंद आई होगी। मुझे शाजिया मलिक को और कैमरे के पीछे यास्मीन को इजाज़त दीजिए। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय फॉर नाउ।